एट द सेम टाइम इट कुड बी सच दैट जो मेंटी है उसके पास एक्सपीरियंस भी है, पोटेंशियल भी है, but at the same time he or she needs someone who can be of great help, who can solve the problems, the dilemmas, help that individual in overcoming whatever small big difficulties they have in their life, right? So today when we talk about two different things, कई बार हम लोग mentoring, counseling, coaching ये बहुत बार यूज कर लेते हैं in a single sentence, more or less like synonyms. But let me tell you that these two things are different from the role of a teacher that we play. We have to jump on into a different role, which is of a mentor. And then if you wish so, you can also become a counselor. वो कैसे बनेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस एंड ऑल, वो सब लोग हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ऑल राइट, विद दिस लेट मी मूव ऑन टू माई नेक्स्ट स्लाइड की, जो कि आज हम लोग दो बैक टू बैक सेशंस लेने वाले हैं. एवरीथिंग मस्ट हैव सम आउटकम और अनदर. आज आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस सेशन में, यू शुड बी एबल टू टेक समथिंग विथ यू. सो फोर लर्निंग आउटकम्स दैट आई हैव डिजाइंड वाज to be able to understand the fine line between mentoring and counseling. जितने लोगों के इंस्टीट्यूट्स में मेंटरिंग सेल्स हैं, ऑल राइट, ऑलरेडी मेंटरिंग स्कीम्स जो लोग चला रहे हैं, उसको और अच्छे से हम लोग कैसे चला सकते हैं, क्या बेटरमेंट लाया जा सकता है हमारे मेंटरिंग टेक्निक्स में, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे. एट द सेम टाइम जो लोग चाहते हैं दैट यू वांट टू गेट इनटू काउंसलिंग, स्पेसिफिकली करियर काउंसलिंग, and establishing a counseling center at your institute, we'll also have some guidelines about it. And most importantly, I'll talk about how mentoring will have a great impact on your accreditation, be it NAC, NBA, NIRF, जहाँ पे भी आप accreditation के लिए अप्लाई करते हैं, mentoring का उसमें direct relationship है. और वो कैसे होगा ये मैं आपको as we move through the slides ये बताऊंगी. All right. Comes my next question. Are we all on the same page? Should we move ahead? Yes, ma'am. Great. Thank you so much. So, when we are going to talk about mentoring, let us first understand what exactly is a mentor. Rather, who exactly is a mentor? So, mentor is someone who sees more talent and ability within you than you see in yourself and helps it bring it out of you. तो आप बोलेंगे ये तो टीचर का ही काम है. तो टीचर हमेशा करते आ रहा है. टीचर हमेशा लोगों से बात करती है, बच्चों से बात करती है, उन्हें अपने पोटेंशियल के बारे में एहसास दिलाते रहते हैं, एक्सेट्रा. We do that in the classroom, we do that after the college hours, etc. When I'm talking about a mentor specifically, he or she is responsible for those limited number of students who are allotted to them, right? When I talk about a mentor, I talk about the responsibility that a mentor has, that yes, if these 30 students are allotted to me as mentees, it's my responsibility, it's my job to understand what kind of talents they have, what kind of passions do they have, what kind of hobbies and interests they pursue. And taking all these into considerations, I'll be able to help them understand better in their own way, right? So when a student comes to you in the first semester, right, and when the student leaves the institution after 4 years, that is in the last semester, there must be a marked difference in the personality of that individual, right? This change, this marked difference, ये कौन ला सकता है? तो ये mentor ला सकता है, right? So mentor is definitely someone who will be able to spot that diamond, right? Everybody is a diamond. अब आप बोलेंगे कोयले की खान में आपको कुछ पत्थर मिलेंगे, कुछ कोयले मिलेंगे. मैं बोलूंगी हमारी क्लास में let us treat everybody as diamonds. How to make that diamond shine? Rather, to make someone believe that yes बेटा तुम में ये power है, तुम में ये ability है, let us go and work on this. That is how mentor is going to help, and particular
individual, right? तुम्ही Just give me a moment. आल्याशिवाय दिसली नाही करणार Yeah, just a moment. त्याच्यावर पण कोण कोण होतं डॉक्टरवर पण होतं दोन टाकू का पाण्यात टाकून सगळीकडेच होता मग मला समजत नाही की मी काय करू म्हणून झोपायला गेले Very sorry for that. Yeah. So we talked about how a mentor can identify in helping people into understanding their abilities. So ये mentoring या mentorship क्या ये बहुत नया है? तो बिल्कुल भी नया नहीं है. It has ancient roots. If we talk about Indian Vedic traditions, right from Guru Drona and Arjun. We talked about Chanakya. We talk about Krishna and Arjun. We talk about Eklavya. We talk about Karna. We talk about a variety of Guru Shishya traditions in Eastern traditions जो हैं हमारे. बट इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड मेंटर, जो ये इंग्लिश वर्ड है मेंटर, ये कहाँ से आया हुआ है? सो होमर्स एपिक पोएम ओडेसी थी, उसमें उनका बेटा था एंड ही वांटेड टू कीप हिज सन इन रोम, ओके, एंड गो ऑन अ बैटल, सेल करना चाहते थे वो, पर कैसे अपने बच्चे को किसके हाथ में रख के जाएंगे? तो उनका एक बहुत अच्छा ट्रस्टेड एडवाइजर था and he told him that I am going to leave my son in your custody. It is your responsibility to make him a good king. Teach him the right and wrong. Teach him about politics. Teach him about warfare. Teaching him about how to be a good human being, how to be a leader. और तब से ये वर्ड मेंटर जो है उन्होंने अपने दोस्त के लिए यूज किया था, तब से ये वर्ड मेंटर यूज में आया हुआ है. सो मिडीवल गिल्ड्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूरोपियन मिडिल एजेस में अप्रेंटिस सिस्टम शुरू हुआ था, और तब भी मेंटरिंग सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ते गया. और अगर हम आज की बात करेंगे तो मॉडर्न मेंटरशिप प्रोग्राम्स स्पेसिफिकली प्रोफेशनली जो चलते हैं, फॉर्मलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम्स विद इन प्रोफेशनल सेटिंग्स, इनमें बहुत ज़्यादा सर्ज आ चुका है. सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वॉट in mentoring is and how it has evolved over a period of time. Now, if you ask me who is a quintessential mentor, for me, the quintessential mentor is Sri Krishna, an individual with years and years of wisdom, expertise, knowledge, a lot of potential in Parth, which is Arjun, who was in a dilemma what to do. And because this scene is from the epic Bhagavad Gita, you can always say that when these two individuals, if you see these two individuals, you will always see a relationship of a mentor and a mentee in them. Someone who is in a dilemma, someone who does not know what to do next, comes to an individual and asks for direction, and then uh, Krishna gives him the proper direction, advises him to move in this particular field. आई एम श्योर आप सब लोगों ने इंस्टाग्राम पे आप लोग देखते होंगे, रील्स देखते होंगे, भगवत गीता का पेज भी है, या फॉर दैट मैटर जया किशोरी जी, who is a motivational speaker. If you have seen one of her reels, very beautifully she narrates the incident, rather the trust between a mentor and a mentee, which is one of the most important qualities a mentor should have, that he should be able to gain the trust of his mentee. So वाक्य ऐसा होता है कि जब कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं before the Mahabharat starts, that we want you to fight from our side, and Balram and Krishna had stated that हम किसी के भी साइड से ऐसा शस्त्र नहीं उठाएंगे, we won't be able to fight from that particular end. तो इस सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण उन्हें एक ऑप्शन देते हैं, चॉइसेस देते हैं कि चाहें तो आप एक तरफ मेरी एक अक्षयनी नारायणी सेना ले, और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था. और दुर्योधन ऑब्वियसली सेज दैट या आई एम गोइंग टू टेक दैट एक अक्षयनी नारायणी सेना, आप तो शस्त्र उठाने नहीं वाले हो, तो मेरे किस काम के हो टाइप्स में.
So Parth says, obviously, I want you. Without Shastra, also, you are someone who are definitely going to guide me. So at this point in time, Sri Krishna व्यंग कहते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, हार निश्चित है तेरी, क्योंकि दुर्योधन जो है वो तो पूरी छाछ ले गया है और तेरे पास तो कुछ नहीं बचा है, माखन ले गया है दुर्योधन, छाछ रह गई है तेरे पास. And Arjun, very, with a strong determination and belief, says that मैं नहीं हार सकता हूँ, हार नहीं हो सकती है मेरी. और माखन किसको चाहिए है, राइट? आई डू नॉट वांट माखन बिकॉज आई हैव माखन चोर मेरे पास है, right? The kind of relationship between Krishna and Arjun, the kind of warmth, the kind of unconditional support, the kind of trust they had on each other was perfect. Now, even if we talk about these qualities of unconditional support, of trust, of belief, of having that strong conviction that whatever the other person is going to tell me is going to be for my good, not an iota of disbelief in that particular conviction, is what makes the mentor mentee relationship strong. And here, with this, I want to ask you all, what is your idea of a mentor? What do you feel should a mentor have as this, right? So, if you can see on the slide, what do you think is the most important characteristic of a mentor? If you can simply join at slido.com, this is the code that is given over here. There is a QR code also which is given. You can simply scan that through your mobile phones and go on this. So I'll request everybody to go on this active poll. I hope you still are able to see the slide. I repeat, are you able to see the slide? Yes, ma'am. Yeah. And are you able to go on slido.com? Anyone who has any issues when it comes to Slido? Anyone? Anybody who is trying to, okay, empathy, I have 100%. One person has logged in and given me the answer. Okay, experience दो लोगों ने हो गया है. Come on quickly, we are a group of 30 people, I believe, at the most. I can at least have 15 people responding to me so that I know that somebody is listening. Come on, quick, quick. So I have 3 people answering. Can we quickly move ahead? Come on, people, quickly join in and tell me, what do you think is the important characteristics of a mentor? Do you think approachable or being knowledgeable does not matter? When I talked about these 3 people, obviously I had given you only one choice. Uh, Anyone, come on, quick. Is anybody trying to mark it or should I move on? You can at least tell me that. Anyone? All right. So I believe rest of you are doing the most important thing that you have. Okay, I have one more, which has talked about empathy being one of the most important characteristics. All right. Great. So 4 people are still listening to me. So let's then talk about empathy. You talked about communication. You talked about experience. How that is Ma'am, all. ma'am, excuse me, we are not able to scan that QR code actually. There is a code also, sir.
if you join at Slido, just you have to log in at slido.com. login भी नहीं करना है, just type कीजिए और hashtag 2371453 कोड अगर आप डालेंगे तो आप join कर पाएंगे. Ma'am, please repeat the code hashtag Two two three three seven one two three four seven five one three. 453. Okay, thank you. Yeah. So, when we talked about these important characteristics of a mentor, we have to first understand ki why are these characteristics so important, or why rather we are talking about skills of a mentor when we are quite sure we have been mentoring people for this long, these many years. तो क्या हमें पता नहीं है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या स्किल्स जरूरी हैं? Definitely we all know that yes, communication skills are extremely important. Being empathic is very very important. Being knowledgeable and experience also matters a lot. Why? Because of the problems faced by today's youth. When we are talking about this generation Z, right? If you have I don't know how many of you have subscribed to First Poll on Instagram. Anybody who has subscribed to First Poll? So there's this lady who talks about, there was this wonderful um news report that she was presenting, that today's organizations do not want to hire Gen Z employees. Why? Gen Z students को उनको एम्प्लॉय नहीं करना है because of lack of life skills. These Gen Z people do not know how to adapt. They are not resilient. They are not at all patient because of a lot of things, right? There's a lot of uncertainty. Upbringing may change aa gaya hai. Social media has affected their lives very much. Their relationships are very fickle. They want an Instagrammable life every now and then. They cannot have say in everything, so decision making process is not very good. And at the same time there are a lot of mental health concerns, right? They get panic attacks, anxious very easily. There are a lot of suicidal tendencies on rise. आप देखेंगे छोटी छोटी चीजों पे 7th 8th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के भी बच्चे मोबाइल ना मिलने पे, बाहर ना जाने देने पे सुसाइड्स करने लगे हैं. सो देर आर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, देर आर लैक ऑफ लाइफ skills, and a lot of academic pressures and uncertainties there. And when we talk about all these problems which are faced by today's youth, अगर मैं uncertainty की बात करूंगी तो uncertainty कैसे आती है? Can anybody talk to me about this? कि जब हम uncertainty की बात करते हैं तो ये uncertainty क्या है और कैसी है? Anyone? Academic pressure तो हम लोग सब समझ लेते हैं. Uncertainty किस चीज की होती है बच्चों में? Anyone? Job opportunities. Great job opportunity, so they are not certain whether they'll get the right kind of job. जो education ले रहे हैं उसी से related उन्हें job मिलेगा क्या, या job मिलेगा भी नहीं in the first place? That is also a big question. Very rightly said, sir. Uncertainty regarding their career, regarding their employment opportunities. Great. Anything else that can add under this particular term, uncertainty? Yeah, anyone. Come on, quick. You have to be quick in answering. All right. If nobody is answering, let me answer this, that when we talk about uncertainty, we have to also understand the kind of choices that they have to make. With NEP 2020, they are going to do a lot of internships, project works, they are going to do multidisciplinary courses as well, and they have a huge buffet in front of them. What to choose, what aligns with their aspirations, what aligns with their short term goals, what aligns with their interest and hobbies, what aligns with their aptitude and abilities has to be very, very clear in their mind.
और इसीलिए they need the guidance of a mentor who will be able to help them at every stage. हम spoon feeding की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं. When I talk to you about mentoring, when I talk to you about helping the students, when I talk to you about assisting the students in decision making, I am not saying that they should be dependent on the mentor for everything, but rather we are going to empower people. Mentoring is not assisting, my friends. Mentoring is empowering today's youth. Mentoring is one process through which you are going to ensure that aapke students can take the right kind of decisions, can be certain when there is a lot of chaos going around them. They can be good leaders, good team players. They can themselves be very empathic. They can be creative, intuitive, and at the same time, they have to be very tech savvy, having excellent communication skills. Because the skills that I just talked to you about, and we will discuss them in detail in our next session on skill development, कि यही skills कंपनीज को चाहिए होते हैं. यही स्किल्स कंपनीज चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज में हो, जो जेंजी के स्टूडेंट्स में नहीं पाए जाते हैं. So when we are talking about so many problems faced by today's youth, we have to understand that the responsibility of the mentors has increased manifolds. The mentor's job has now widened its scope, right? And we have to take that role very, very seriously, not just on paper, but we have to ensure that the students are benefited by the mentoring program which is run by your organization, right? So I still have four people who have only answered for this particular poll, which is okay. And now let me talk to you about what to do before we step up as a mentor. Let me ask you, how many of you do SWOT analysis on a regular basis? SWOT analysis करते हैं आप लोग? बच्चों का नहीं है, खुद का. Every semester, do you ponder over what kind of strengths have you gathered over the past semester? What kind of weaknesses you think that should be corrected for the next semester? Where you could use improvement, right? How, if you excel in a particular area, how to keep it going, about your teaching approaches, your core beliefs about teaching and learning, etc., etc. How many of you really, really do that? Maybe maintain a diary, talk to your own mentor, your colleagues, brainstorm with the students. And also, let me ask you, how many of you get a feedback from your students? How many of you take feedback? All right, tell me, how many of you genuinely take a feedback from your students? Okay, so I have Vandana ji who is giving me a thumbs up. Smita ma'am, what methods do you use for taking that feedback? Do you talk to them? Do you have a questionnaire? Do you have a survey which is in place कि भैया सेमेस्टर खत्म होते साथ मैं एक सर्वे फ्लोट कर दूंगी? Okay, standard formats are used. Dr. Disha ma'am tells me that standard formats are there in their institutes. Wonderful. The most effective way of taking feedback is the standard format. If you do not have a standard format, no, not a problem at all. आपके पास इतने सारे options हैं जहाँ पे आप not only in the semester but every lecture का भी feedback ले सकते हैं. So what I suggest to you all is that you make a questionnaire of your own, a small survey, right? You talk about the content that you have delivered over that particular semester, जिसमें कि content के heading में आप 4-5 statement डाल सकते हैं. आपके टीचिंग पेडागोजी के ऊपर कुछ ये डाल सकते हैं. You as an instructor, about your own personality, you can take certain questions on that. ऐसे 3 क्राइटेरियाज में अगर आपने ये बना लिया है, बस जैसे ही आपका सेमेस्टर खत्म होने आता है आपको वो फ्लोट कर देना है.
आपके स्टूडेंट्स के लिए, एंड यू कैन गेट अ फीडबैक. सिमिलरली, जैसा मैं आपको स्टूडेंट्स वर्ड यूज किया, मैंने मेंटीज नहीं. द मोमेंट यू गेट अ फीडबैक अबाउट योर टीचिंग, सिमिलरली उसी प्रकार से आपको आपके मेंटरिंग का भी एक फीडबैक फॉर्म बनाना है. ये चाहें तो आप शुरुआत में जब आपको मेंटीज अलॉट होते हैं, कितने मेंटीज मिलते हैं आपको पर सेमेस्टर या पर ईयर? हाउ मेनी, रेशो क्या है? 1:10, 15, 30, 50, 20. ग्रेट. 1:20 बहुत अच्छा रेशो है. 20, 25, yes, it's a good number. I believe you have a WhatsApp group with them. You Yes, must be ma'am. having a WhatsApp group, right? इस WhatsApp ग्रुप में आप क्या क्या चीजें पोस्ट करते हैं? Important circulars, सर्कुलर्स, notices. नोटिसेस, एग्जाम टाइम टेबल्स, स्कॉलरशिप से रिलेटेड डिटेल्स, राइट? कब छुट्टियां लगने वाली हैं, कब रिजॉइनिंग होने वाला है. तो मतलब हमने हमारे मेंटर मेंटी ग्रुप को एक नोटिस बोर्ड की तरह बना दिया है, एक वर्चुअल नोटिस बोर्ड, राइट? So what I want all of you to do is start using this WhatsApp group, right, for the development of the student. जो mentor mentee, जो जैसे आपने बोला 1 to, या इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस, एब्सोल्युटली ट्रू दिशा मैम. और इसी को हमको एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में करना है. ना जनरली क्या होता है, व्हेन वी सी अ इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो और वी कम अक्रॉस सम वेरी गुड मटेरियल, वी इमीडिएटली सेंड इट अक्रॉस टू स्टूडेंट्स. दैट इज वन वेरी गुड वे. बट आई वांट टू सजेस्ट दैट व्हाई नॉट मेक अ मेंटरिंग प्लान. सब लोग लेसन प्लान्स बनाते हैं ना? टीचिंग प्लान जिसको बोला जाता है, सेमेस्टर के लिए जो भी सब्जेक्ट हमको अलॉट होता है उससे रिलेटेड हम लोग एक प्लान बनाते हैं. वैसे ही अगर मुझे सेमेस्टर की शुरुआत में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर मुझे बच्चा मिल जाता है, 20 to 25 स्टूडेंट्स मुझे अलॉटेड है, तो करना क्या है? प्लीज पे अटेंशन नाउ. आपको करना ये है दैट यू हैव टू मेंटेन एन एक्सेल शीट. ओके? अब इस एक्सेल शीट में आप क्या क्या इंफॉर्मेशन डालेंगे मैं आपको बताती हूँ. शीट नंबर 1 विल बी द डेमोग्राफिक डिटेल्स. ओके? और क्या क्या डेमोग्राफिक डिटेल्स आप मेंशन करेंगे? सो द नेम ऑफ द मेंटी, उनके पेरेंट्स के नाम, पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, their mobile number. You will talk about their address also. You will also take information about their past educational qualification, their skills, interest and hobbies. ओके? ये बेसिक चीजें आपने ले ली. ये कैसे कोरिलेट करते हैं हमारे आगे के प्रोसेस के साथ, जो कि हम आज स्किल डेवलपमेंट में भी बात करने वाले हैं. सो आई विल कोरिलेट दिस थ्रू. आप इतना समझ लीजिए कि एक्सेल शीट बनानी है, 20-25 जितने भी बच्चे आपके पास अलॉटेड है, और जैसे ही आपका अलॉटमेंट हो जाता है मेंटीज का, ये गूगल फॉर्म बना के ये बच्चों से ये इंफॉर्मेशन भरवा लेनी है, राइट? बेसिक इंफॉर्मेशन है. इसके बाद आप लोगों को, जैसे मैंने बनाया, मेंटरिंग प्लान बनाना है. सो इन अ मंथ हाउ मेनी टाइम्स डू यू मीट योर मेंटीज फिजिकली? हाउ मेनी टाइम्स इन अ मंथ? वंस, ट्वाइस, 3 महीने में एक बार? कितना? Should I see the chat box? Okay, 1 or 2 times, twice a month. That is wonderful. अब जब आप फिजिकली अपने स्टूडेंट्स से मिलते हैं 3 in a month, दैट इज वंडरफुल, वंडरफुल. तो अगर हम लोग ऐसा मान के चलते हैं एवरेज में एवरी वीक वंस वी आर मीटिंग, लेट्स अज्यूम दैट इट्स अ सैटरडे. ओके? अगर हम एवरी सैटरडे हमारे स्टूडेंट से मिलते हैं, विच इज ओनली 1 day इन अ वीक, बाकी के 5 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं? तो उस मेंटरिंग प्लान में मैं चाहूंगी कि आप उस मेंटरिंग प्लान को सेमेस्टर में डिवाइड कर लीजिए. सो मंथ नंबर 1 में 4 वीक्स, 4 वीक्स में हम लोग 4 टाइम्स फिजिकली मीट करने वाले हैं. और वीक नंबर 1 के जो 5 दिन है, इसके लिए मैं क्या करूंगी, मंथ वाइज थीम्स लगाऊंगी, राइट? अब जैसे मैम ने कहा मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल वीडियोस हम लोग भेजते हैं. इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन कर लेंगे,
देखिए, जनरली मैं जानती हूँ बच्चों के क्या मोटा मोटी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है, या somebody इज अफ्रेड अबाउट राइटिंग, उनको लगता है उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, एक्सेट्रा। तो अगर हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे बच्चों को 90% बच्चों को, आपके जो 20 बच्चे हैं उसमें से 18 बच्चों को इंग्लिश बोलना ठीक से नहीं आता है, अज्यूम, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आप क्या कर सकते हैं, मंथ 1 का थीम रहेगा लेट्स टॉक, ओके, लेट्स कम्युनिकेट, या फिर आप उसको कोई भी अच्छा सा नाम दे दीजिए कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड। आपको चैट जीपीटी, जेमिनाई बहुत अच्छा नाम सजेस्ट करेगा इसमें, दे कैन सजेस्ट सम ब्यूटीफुल एक्टिविटीज आल्सो। तो आप क्या कीजिएगा, एवरी डे का एक एक एक्टिविटी का आप शीट बना लीजिए। तो जैसे मैंने बताया, डेमोग्राफिक डिटेल्स आपने शीट 1 में रखे हैं एक्सेल के, अब शीट 2 में आपको आपका मेंटरिंग प्लान लिखना है। सो इफ यू बिगिन योर क्लासेस इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई में कम्युनिकेशन स्किल्स इज योर थीम, ओके। देन for the 5 days of week 1, you are only going to talk to them about establishing and rapport, क्योंकि वो नए नए हैं, एकदम से हमको भी उनको डराना नहीं है। पहले तो एक रैपो एस्टैब्लिश करना है ताकि वो आप पे ट्रस्ट करने लगे, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, और धीरे धीरे स्लोली दे स्टार्ट टॉकिंग टू यू, ओके। सो हमें क्या करना है, वीक 1 में जैसे आप रील मेकिंग कंपटीशन रखिए, स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी ईगर इन मेकिंग रील्स, ओके। उनको बोलना है कि एक क्लोज्ड ग्रुप बनाएंगे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या व्हाट्सएप पे भी खुद का वीडियो लेंगे वो, एंड दे विल जस्ट टॉक टू अस अबाउट हु दे आर, राइट। आप जो भी चाहें इसमें चेंजेस कस्टमाइज कीजिए अपने बच्चों के हिसाब से। अगर आपके बच्चे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और इतने टेक सेवी नहीं है कि दे विल नॉट बी वेरी क्या बोलेंगे, यूजर फ्रेंडली नहीं है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं पैटर्न को। तो उनको बोलिए व्हाट्सएप पे सिर्फ लिख के भेजे। अब पहले वीक में ना भाषा का ये मत रखिए बैरियर, let them talk in Hindi, Marathi, English, whatever language they want to. And then slowly, as you move from week 1 to week 4, which is the last week, तो पहले वीक में आपका एक फिजिकल मीटिंग हो जाएगा, दूसरे वीक में फिजिकल मीटिंग हो जाएगा, तीसरे वीक में फिजिकल मीटिंग होने के बाद चौथे वीक में टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ग्रामरली, इंग्लिश क्लब फॉर एवरीवन, डिओलिंगो, प्रोफॉक्स के क्विज, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको इजीली फ्री क्विजेस मिल जाएंगे टू इम्प्रूव द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। सो उनका ओरल, दैट इज स्पोकन इंग्लिश, सुधारने के लिए क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, ये आप एक तो ब्रेनस्टॉर्म कीजिएगा, या एआई की मदद लीजिए, या ask your own students, sky is the limit for that, you can think and do that. सो अपनी शीट 2 में क्या बना लिया है, मेंटरिंग का पूरा प्लान बना लिया है। तो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इट इज नो मोर अ वर्चुअल नोटिस बोर्ड, बट रादर इट बिकम्स वन ऑफ अ मीडियम फॉर हैविंग वेरी गुड इंटरेक्शन विद द योर मेंटीज। इससे आपका कनेक्शन और स्ट्रांग रहेगा। दे जितने भी 20-25 लोग आपसे जुड़े हुए हैं, दे विल बी इन अ पोजिशन टू interact with you on a regular basis. Draw some deadlines for them, right, कि आप 10 बजे से 5 बजे तक ही व्हाट्सएप ग्रुप को हम एक्टिव रखेंगे, उसके बाद का टाइम हम लोग फॉर देयर पर्सनल टाइम रहता है किसी का, ऐसा करके यू कैन हैव योर ओन सेट ऑफ रूल्स फॉर दैट व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। I hope we are on the same page and my speed is okay and the language is comfortable to everybody. All right, great, thank you so much. So once we have made that Excel sheet, okay, of one of demographic details, second is of the mentoring plan. अब मैं वापस अपना वीडियो पॉज करूंगी and I'll start my presentation. All right, just give me a minute and we will start from where we had left. All right, so I began with the question about our understanding and why we should do it. इतनी जो चीजें मैंने आपको बताई अभी, राइट, अबाउट मेकिंग एन एक्सेल शीट, अबाउट प्रिपेयरिंग अ मेंटरिंग प्लान, इसके पहले एंड वी स्टार्टेड द एंटायर कॉन्वर्सेशन विद फीडबैक, राइट। तो फीडबैक जरूर लें, और फीडबैक लेते साथ आप आपके मेंटरिंग प्लान में भी चेंज ला सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर वे।
So what are the skills of a mentor? So people talked about empathy. 25% जो चार लोग थे उसमें से काफी लोगों ने कहा कि empathy is very very important. Yes, empathy, communication skills, and being approachable as a mentor becomes extremely important, and we all know this, so I'm not going to in detail talk about these three skills, but my focus is going to be on number 4, 5, and 6, which is networking skills. When I talk to you about networking skills, let me ask you a question. What is your understanding of networking? क्या लगता है आपको नेटवर्किंग मतलब क्या? Anybody? Students connected with one another. Okay, students connected with one another. Okay, wonderful. What else can networking be? And why should a mentor have a good network? Okay, पार्टिसिपेंट्स यू so let अनम्यूट, me. मैडम कैंट सी द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में कुछ भी मत लिखिए, अनम्यूट करके बोलिए। Yeah. Ma'am, networking can be listening with the people of same interest or same focus, and the Mm-hmm. mentor should have a good network because he or she can then address the student to the concerned person whenever the students are in need of such guidance or help. So networking can help them in better employment or better learning opportunities. Fantastic, fantastic, ma'am. That's absolutely correct. When I talk about networking and why a mentor should have a good networking skills is because with NEP 2020, with that array of opportunities that is in front of them, with that multitude of choices that they have in front of them, a mentor should be in a position to liaison with the right kind of people. जैसे हम लोग लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हैं, राइट? And I'm sure you all must be there on LinkedIn. If not, please immediately actively get involved, start posting relevant things, start interacting with people who matter a lot, because there are a lot of employers who are there on LinkedIn, right? So networking with your alumni, networking with your students, networking with teachers and colleagues from other universities and institutions, networking with the employers, all those things are essential for today's mentor. Coming to sheet number 3, which I just talked to you about. मैंने दो शीट्स के बारे में बात की, एक्सेल शीट्स के बारे में, डेमोग्राफिक डिटेल और मेंटरिंग प्लान। तीसरा मैं बात कर रही हूं अबाउट नेटवर्किंग। सो जितनी भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, चाहे वो इंटर्नशिप से रिलेटेड है, राइट, जस्ट नोट डाउन द नेम ऑफ द कंपनी, जो भी उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है वो, और क्या अपॉर्चुनिटीज वो बच्चों को देना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो काम हमारा नहीं है, ये तो प्लेसमेंट ऑफिसर का काम है, इंटर्नशिप हम देंगे तो सभी काम हम करने वाले हैं क्या? तो जी हाँ, आज की डेट में अगर हम मेंटरिंग की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी टोपी पहननी पड़ेगी। प्लेसमेंट ऑफिसर, इंटर्नशिप ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर, इन सब की कैप्स को हमें पहनना पड़ेगा, क्योंकि मेंटर एक ऐसा व्यक्ति है जो मेंटी को हर तरीके से मदद कर पाएगा। सो नेटवर्किंग के लिए बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. Ask your students also to be actively involved in posting on LinkedIn. It could be a small certificate that they have received in maybe a debate competition, or maybe a paper presentation competition, maybe a rangoli competition, could be any small thing that they have done in the college. Okay, they were selected as a team leader, स्पोर्ट्स में कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है कॉलेज ने, तो आपके बच्चों को भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब मैं स्किल डेवलपमेंट की बात करूंगी, जस्ट रिमाइंड मी टू टॉक अबाउट हाउ लिंक्डइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स can be useful for enhancing the skills of the students in a real way, right? देन लेट अस टॉक अबाउट अपडेटेड इंफॉर्मेशन। अब जैसे ही बच्चा, अब मान लीजिए फर्स्ट ईयर के बाद ही एक बच्चा बोलता है मुझे तो ये जम नहीं रहा है, आई एम गोइंग टू लीव, एनईपी हैज गिवन देम दैट ऑप्शन, राइट? फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट लेके चला जाए, नहीं तो डिप्लोमा लेके चला जाए, या फिर डिग्री लेके चला जाए, राइट? नाउ इफ एन
individual is wanting to leave, but you feel that the skills of that individual would be better utilized while staying in the course, but at the same time वो बच्चा चाहे तो financial reasons की वजह से जा रहा हो या उसके interest और hobbies नहीं pursue कर पा रहा है, तो ऐसी situation में if you can identify some course, okay, which can help that individual in retaining interest into the particular program that he has taken admission into, तो ऐसे आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा था उनके हॉबीज इंटरेस्ट आप नोट डाउन करके रखिए। तो मान लीजिए somebody is interested into photography and you have seen the photographs and you feel that the individual is a really good photographer। तो मान लीजिए कहीं आपने लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे कहीं और या न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ लिया कि एक बहुत अच्छा फोटोग्राफी का कोर्स चलने वाला है समर में। आप वो इंफॉर्मेशन उस बच्चे को पास ऑन कर सकते हैं एंड यू नेवर नो दैट ही कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट, राइट? इट कुड बी अ गुड थिंग फॉर दैट इंडिविजुअल। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, फोटोग्राफी का तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया, बट बहुत सारे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस आपके स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और एबिलिटीज के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन निकाल के रखनी है। उसी के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है अबाउट देयर पोस्ट ग्रेजुएशन थिंग्स, राइट? व्हाट आर देयर फ्यूचर गोल्स? वुड दे वांट टू डू अ जॉब immediately after their graduation of 4 years, or do they want to go into post graduation? If yes, what kind of opportunities have you identified for them, right? GRE, TOEFL, GMAT, CLAT या जितने भी एग्जाम्स आप सोच सकते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग से रिलेटेड, इन सभी एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन आपके पास एक एक्सेल शीट में होनी चाहिए कि कब डेट्स निकलती हैं, क्या होता है। ये मैं आपको फिर बताऊंगी कि कैसे करियर डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट में हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को, राइट? But just remember that we have to maintain updated information about foreign universities जहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या है, इवन इंडियन यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आपके बच्चे जाना चाहते हैं, और बच्चे मतलब आपके 20-25 बच्चे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस 20-25 kids that have been allotted to you as a mentee, okay? And finally, let me talk about psychology. When I talk about psychology, I'm talking about having some basic knowledge, okay, of the subject of psychology. Why is it important? Because when we talk about mentoring and when I specifically talk about counseling, the knowledge of psychology, the knowledge of human psychology, the knowledge of student psychology is going to be really helpful. Knowledge about motivation, knowledge about what are the memory techniques, some information about what forgetting is, or for that matter how learning takes place, about learning disabilities, क्योंकि NEP 2020 में हम लोग inclusive classrooms, diversity in classrooms, इसके विषय में भी चर्चा करते हैं। तो जब हमको पता है that somebody is having dyslexia or somebody is having some sort of disability because of which the person is not able to adjust, ऐसी सिचुएशन में हमें साइकोलॉजी का अगर नॉलेज रहेगा तो वो हमारे लिए बहुत इसेंशियल और इम्पोर्टेंट बन जाता है, राइट? So, do keep this in mind that those who are interested can always do some sort short-term certification program from Swayam, maybe IGNU, और फॉर दैट मैटर अगर आप ही का इंस्टीट्यूट कोई एफडीपी चलाना चाहता है, ओके, ऑन स्टूडेंट साइकोलॉजी, अगर आपके डिपार्टमेंट में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है आपके इंस्टीट्यूट में, वो चला सकते हैं। या जिनके डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में या इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, वो ऐसा एक एफडीपी शुरू कर सकते हैं, वर्कशॉप ले सकते हैं ऑन स्टूडेंट साइकोलॉजी, जो कि आप नैक के क्राइटेरिया 1 में या क्राइटेरिया 3 जब आप एमओयू करते हैं किसी के साथ, और अगर आप चाहें तो 2-3 कॉलेजेस मिलके ये एमओयू करके चला सकते हैं, फंक्शनल एमओयू में दिख जाएगा, स्किल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर में दिख जाएगा। सो ऐसे 2-3 जगह पे आप इसको नैक के इसमें भी दिखा सकते हैं। I believe my speed is okay and we are all good and you all
are agreeing to what I am saying. If you do not agree or you want to add on to some other skills also, please unmute yourself and share that. Anyone? All right, I have no response, so I'll be moving. Comes my another question. How helpful are you finding the current discussion? Come on, give me a feedback. I told you about feedback, so let me have a feedback for myself whether any one of you is feeling that this is not helpful. Bhai jam nahi raha hai ma'am ye. So I can immediately change my gears and I can talk about something else that you want me to. You can put that in the chat box. I have two people who are responding. Okay, I have four people. Okay, वही चार लोग जो पिछले वाले स्लाइड में भी थे, मुझे इससे वही रील याद आ गई। तो वो जो कहते हैं ना कि वो चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, तो चलिए मेरे लिए चार लोग ही क्या कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो दैट। Ma'am, I have additional one. In अच्छा, previous, योर एडिशनल, चलिए तो पांच का भी छह हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो दैट यू आर फाइंडिंग दिस डिस्कशन हेल्पफुल एंड लेट अस मूव ऑन टू अनदर थिंग दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस इज कि भाई स्टूडेंट्स को ही क्यों, टीचर्स को भी मेंटरिंग मिलना चाहिए, और स्पेसिफिकली न्यूली इंडक्टेड टीचर्स को। हर साल हम लोग पीएचडी बार नया पोस्ट नहीं, तो फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम तो टीचर्स करते ही करते हैं। वो बात तो छोड़ दीजिए, आप जो कैस में काम में आने वाला है इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं ऐसे इंडक्शन की बात कर रही हूं जो एक्चुअली उस टीचर को सच में काम में आएगा, राइट? ऐसा प्रोग्राम adjusting into the new things. Let me tell you that new teachers need guidance, need support, and they need to upgrade their skills, because if mentoring is rightly used in higher educational institutions, इसके benefits बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो नए टीचर्स का जब हम लोग गाइडेंस और सपोर्ट और अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो कैसे किया जाएगा, राइट? सो वी कैन स्टार्ट विथ नीड एनालिसिस. When I talk to you about need analysis of the newly inducted teachers, क्या क्या हमने करना चाहिए नीड एनालिसिस में? तो जो भी हमारे पास CHBs आते हैं, राइट, जो भी हमारे पास मान लीजिए एडहॉक टीचर्स हैं ऑलरेडी, एक 6 महीने से हैं, दे कैन बी एट एनी पॉइंट इन टाइम उनके रिसर्च में, अगर मान लीजिए PhD नहीं हुआ है, हो सकता है किसी ने पेट दी है, JRF किया हुआ है, हो सकता है उनको क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता, रिसर्च आर्टिकल छापना है तो केयर लिस्टेड जर्नल्स कैसे ढूंढने हैं, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस के ऑथेंटिक जर्नल्स कौन से होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जर्नल्स में अगर पब्लिश करना है तो क्या उसकी प्रोसीजर होती है, या फॉर दैट मैटर पेडागोजिकल टूल्स नए नए क्या आए हुए हैं, वो हमने कैसे यूज करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो फिर से मैं कहूंगी 2 से 3 कॉलेजेस मिलके MOU कर लीजिए, ठीक है, एंड लॉन्च अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम और एन FDP इफ यू वांट टू। कितने घंटे का, अगर मान लीजिए आपको 1 क्रेडिट कोर्स चलाना है 16 घंटे का भी, तो आप बहुत अच्छे से ये चला सकते हैं। इट विल बी वेरी वेरी इसेंशियल, एंड लेट मी टेल यू, mentoring to newly inducted teachers is a must. ये सब लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं। इवन NITTR चेन्नई ने मेंटरिंग एंड काउंसलिंग फॉर टीचर्स के ऊपर स्वयं पे एक मूक भी डाला हुआ है, तो आप चाहें तो वो भी प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट है, यू विल एंजॉय दैट। एक स्टूडेंट साइकोलॉजी पे भी उनका प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो कमिंग बैक टू कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे नीड्स, तो अगेन गूगल सर्वे, राइट, एक सर्वे हमको फ्लोट कर देना है न्यू टीचर्स के लिए कि किस चीज में आपको ट्रेनिंग चाहिए। डू यू वांट टू बेनिफिट फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स, या सब्जेक्ट नॉलेज?
जो सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स अगर है, मान लीजिए 3 कॉलेजेस में मिलके ये प्रोग्राम चला रहे हैं और उसमें कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के टीचर्स ज्यादा हैं, सो मान लीजिए अज्यूम करते हैं अभी के लिए, और उनको लगता है कि हमको accounting techniques या for that matter how to resolve use of new pedagogical tools कैसा करना है, पेपर सेट कैसा करना है, इसमें भी हेल्प लगती है। मैं जब रिसेंटली ज्वाइन करी थी तो मेरे साथ एक टीचर थे डॉक्टर सरिता, उन्होंने मुझे हेल्प किया था कि इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है पेपर्स का, राइट। सो राइट फ्रॉम वेरी स्मॉल थिंग्स, पेपर सेट कैसे करना है, अभी तो हमारे पास काफी इंटरनल पेपर्स आ गए हैं, राइट। तो वो उसका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से कैसे उसको करना है, तो ऐसे सब छोटी छोटी चीजें अगेन नैक में आपको बहुत कारगर रहेगा। दिस कैन बी वन ऑफ योर बेस्ट इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस, जो कि क्राइटेरिया 7 में होती है, वो आप डाल पाएंगे। और अभी जो नैक के नए क्राइटेरियाज आने वाले हैं, जो कि इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट में 10 क्राइटेरियाज में डिवाइड होगा, तब तो आपको ये सब चीजें और अच्छे से करनी पड़ेंगी। एंड really friends, I encourage, urge all of you, I request all of you to start this particular thing about mentoring for young teachers. So need analysis कीजिए, take observation, take weekly feedback and talk to them about what are their needs. Okay, तो इतना हमको करना ही है हमारे newly inducted teachers के लिए, right? So let me quickly go back to our slides. Just a minute. Yeah. I hope you are able to see the screen again. Yes, ma'am. Yeah, great. So, as I told you, need analysis, observation. Yeah, somebody saying something. All right. So, formal training, weekly and monthly feedback, and obviously, we have to support all those teachers without interference. मतलब जो भी नया टीचर कर रहा है आप ऑब्जर्व कीजिए, बट डू नॉट इंटरफियर एवरी नाउ एंड देन। ओके, इतना हम अगर करेंगे तो दे कैन ऑल्सो बी, वी आर मेकिंग मेंटर्स आउट ऑफ देम। ओके, अब क्या क्या एक्टिविटीज, मैंने आपको कहा था मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्या क्या एक्टिविटीज आप ले सकते हैं आपके यहाँ जो एग्जिस्टिंग मेंटरिंग प्रोग्राम्स, इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है: एकेडमिक गाइडेंस, पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल इंटीग्रेशन एंड करियर एक्सप्लोरेशन। बिकॉज बच्चा फर्स्ट ईयर का है, नया नया है, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बच्चा है तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू have some sort of stress, okay, study habits, exam preparation, time management, इन सब से रिलेटेड जो मैंने आपको कहा था ना, थीम्स रखिए मेंटरिंग प्लान में, राइट। तो आप इससे रिलेटेड अगेन डिपेंडिंग ऑन कस्टमाइजेशन, आजकल जमाना ही कस्टमाइजेशन का है, तो आपके मेंटीज को क्या चाहिए पहले ये पता कर लीजिए और उसके हिसाब से आप मंथली प्लान, वीकली प्लान बनाते जाइए। पर जैसा मैंने कहा, आप स्वॉट एनालिसिस कीजिए, do have a session of self awareness with the students, और ये 1-to-1 session रखिए physical, okay, wherein talk to them about who they really are, what they want to become in life, okay, make them aware about their strengths, about their weaknesses, and then work with them on improving those weaknesses, right। मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं इन इन उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो क्लब इंट्रोडक्शंस होते हैं ना, हर एक इंस्टीट्यूट में देखिए कोई ना कोई क्लब होगा, कॉमर्स क्लब, इंग्लिश क्लब, फोटोग्राफी क्लब, सम क्लब, आईटी क्लब, एक्सेट्रा। मेक देम पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अब इसी के द मोमेंट यू मेक देम पार्ट ऑफ इट, आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू हैव अ लिंक्डइन पेज, ओके, आपके डिपार्टमेंट का। जैसे मान लीजिए XYZ कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी का, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट का पेज है, और वो हम लोग बच्चों को देते हैं फॉर मैनेजिंग, फॉर creating posts on appreciating, connecting with alumni, connecting with the employers, etc. तो छोटे छोटे पोस्ट क्रिएट करना, तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चों का
कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो रही है, ग्रामरली यूज करना सिखाइए, वर्ड यूज करना सिखाइए। ऐसे छोटे छोटे चीजों के द्वारा हम बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो प्रेस रिलीज के लिए नोट उनसे लिखवाइए, एक पोस्ट लिखवाइए लिंक्डइन के लिए, एक पोस्ट लिखवाइए फेसबुक के लिए, और एक रील बनवाइए इंस्टाग्राम के लिए। अब इनमें जो आपण ज्यांना म्हणतो ना, त्यांच्यातले जे सुप्त गुण आहेत किंवा त्यांच्यातले जे पोटेन्शियल आहे ते आयडेंटिफाय करून आपण त्यांना हेल्प करून राहिलेलो आहे, राईट, इन द प्रोसेस. सो they will also learn a lot from this, and at the same time their development will be taking place. And at the same time from the very first year, मतलब सेमेस्टर 2 से धीरे धीरे उनको करियर पाथ्स, उनकी इंडस्ट्री का ओवरव्यू, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, कितने का पैकेज मिलता है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है, कंपनी के एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये धीरे धीरे हमें उनको बताना शुरू करना है, राइट. उनका रेज्यूमे बिल्डिंग जो है, आप मान लीजिए अराउंड थर्ड और फोर्थ मंथ ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपको उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उनका बेसिक वन पेज रेज्यूमे, जिसको हम लोग, या फिर गुड लिंक्डइन प्रोफाइल, वो भी आप उनको बनाना सिखा सकते हैं। सो ये फर्स्ट ईयर में ये कुछ एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। द मोमेंट दे गो इनटू सेकेंड ईयर, अब धीरे धीरे कोर्स सिलेक्शन कैसा करना है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज अबाउट रिसर्च, राइट, research methodology, at least ask them to make a survey, लिकर्ट स्केल पे क्वेश्चंस बनवाइए उनसे, एनालिसिस, कुछ नहीं तो पाई चार्ट के थ्रू ही एनालिसिस लिखेंगे तो भी चलेगा, प्रोजेक्ट का गाइडेंस आप कर सकते हैं, एकेडमिक राइटिंग, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी एआई का जमाना इतना बढ़ गया है कि बच्चे खुद से लिखना भूल रहे हैं। और इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग, आपके जो वन ऑन वन सेशंस होते हैं, तब उनको डिजिटल फास्टिंग कराइए 1 घंटे का, एंड आस्क देम टू कीप देयर मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स अवे, take a pen and paper, and ask them to write something. It could be anything, how their day was, or what was their experience coming after college, what are they feeling about your mentoring sessions. It could be anything, but every week when you meet them, please आप ये एक्टिविटीज जरूर करवाइए अपने बच्चों के साथ, so that they start writing. Their academic writing also improves in this process. Then again, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इनसे रिलेटेड भी आपको एक्टिविटीज कराने हैं। धीरे धीरे जॉब सर्च स्ट्रेटजीज, इंटरव्यू का प्रेपरेशन, राइट, जीडीपीआई के थोड़े थोड़े सेशंस आप लेना शुरू कर सकते हैं, एक्सेट्रा। थर्ड ईयर में बच्चा जब जाएगा तो स्पेशलाइजेशन के तरफ मुड़ने लगेगा, राइट, तो तब उसको आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, नेटवर्किंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स, इसके लिए तैयार करिएगा। एट द सेम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हो सकता है आपके ग्रुप में देयर कुड बी समवन हु हैज एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, राइट, तो आइडिया जनरेशन, बिजनेस प्लान डेवलपमेंट, पिचिंग स्किल्स, इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। नाउ मेंटरशिप फॉर जूनियर्स, जैसे ही बच्चा थर्ड ईयर में जाएगा, आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं इन मेंटरिंग द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, राइट. You can talk to them about mentoring the juniors, right, knowledge sharing, उनके साथ उनके experiences share करना, क्या problems आ रही हैं वो पूछना, ऐसे धीरे धीरे आप उनमें भी leadership skills develop कर सकते हैं। फोर्थ ईयर में obviously the job of a mentor is now on career placement, so job search assistance, resume and cover letters के reviews, mock interviews conduct करना, right. जो बच्चा हायर स्टडीज में जा रहा है, मैंने आपको कहा था आपको एक्सेल शीट में ये सब इंफॉर्मेशन लगेगी, तो यहाँ लगने वाली है वो, राइट. एंट्रेंस एग्जाम, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, alumni networking, and most importantly is building an online presence for your students, helping them for their personal development. ऐसे फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक के मैंने just whatever came to my mind, and with the help of AI's brainstorming, I could come up with all these things. I repeat, you can customize this as per the
needs and requirements of your institute, students, and the program in which they have taken admission to. All right. So these are a few sample objectives of a mentoring cell, that if you want to enhance the student teacher relationship, I'm sure सबके इंस्टीट्यूट में mentoring cell है, और आपके वेबसाइट पे भी उसका मेंशन होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे. But just I wanted to talk to you about this. As I said that पहले सेमेस्टर से जब आपको मेंटीज अलॉट होते हैं तो टिल दे ग्रेजुएट वही मेंटर उनके साथ अटैच रहता है. सो द मेंटीज प्रेफरेबली बी अटैच्ड द सेम मेंटर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम. ओके. और आपको मीटिंग जो आप लेते हैं उसका रिकॉर्ड रखना है. कैसे रखना है, मैं जब अंत में आपके साथ एक एक्सेल शीट, सॉरी, वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको दिखाऊंगी. उसके जरिए आप ये पूरा डिटेल्स रख सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा. The mentor can keep a record of curricular co-curricular activities जहाँ पे भी बच्चा जाता है, etc. राइट. सो स्लो लर्नर्स, एवरेज लर्नर्स और एडवांस लर्नर्स, इसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन वो, अगर आपके 20-25 जो मेंटीज आपके हैं उसमें भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं. इफ यू हैव या somebody wanting to say something, is it? मैडम एक मिनिट, हाँ, कोणाला तरी व्हॉइस म्यूट करते मी. Okay. येस मॅम, प्लीज कंटिन्यू. Yeah. So if someone wants to अगर किसी केस में है स्लो लर्नर्स हैं कोई, तो उनके लिए स्पेशल रेमेडियल क्लासेस लेना. देन इन्फॉर्मिंग द एग्जाम सेक्शन अबाउट इट कि नहीं भैया हमारे पास डिसलेक्सिक स्टूडेंट है, उसको अब देखो थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. अगर उन स्टूडेंट्स को रेमेडियल क्लासेस में हेल्प करना, एक्सेट्रा. तो ये सब चीज़ें आपके इसमें आप मेंटरिंग प्रोग्राम जो है उसमें आप डाल सकते हैं. मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगी कि बेनिफिट्स क्या है मेंटरिंग सेशन के, राइट. तो मेंटर मेंटी का रिलेशनशिप जब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाएगा, तो यू कैन हैव ऑल द डेटा ऑफ दोस 20-25 स्टूडेंट्स. उन्होंने कौन से करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया है, तो उसका नाम, डेट, आपका उस बच्चे का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट या प्राइज मिला है तो उसका सर्टिफिकेट और मेडल, along with some photographs that the students share with you. Okay. देन जो भी बच्चे ने सर्टिफिकेशंस किए हैं अकेडमिकली, ओके, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आप रखेंगे. एट द सेम टाइम बच्चा इंटर्नशिप कहाँ कर रहा है उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन आप रखेंगे. अब क्या होता है जब AQR भरने की बारी आती है तब हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं. व्हेन एवरी मेंटर कीप्स दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स, जो क्राइटेरिया 3 में रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई लगती है, और फॉर दैट मैटर क्राइटेरिया 5 में प्रोग्रेशन में, प्लेसमेंट्स में, इंटर्नशिप्स में, या क्राइटेरिया 3 में फील्ड ट्रिप्स है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स है, वहाँ पे भी इंटर्नशिप्स है, तो आपको ये पूरी पूरी इंफॉर्मेशन यहीं पे मिल जाएगी. आपको 10 बार दौड़ना नहीं पड़ेगा. मेंटरिंग का अगर आप एक फॉर्मेट लगा लेते हैं, ओके, एंड इफ यू गिव दैट फॉर्मेट टू द टीचर्स कि आपको एवरी मंथ या एवरी 3 मंथ्स में, अगर 6 मंथ्स का हमारा है तो 3 महीने में तो एक बार हम लोग ये इंफॉर्मेशन सबमिट कर ही सकते हैं. एक स्टैंडर्ड एक्सेल शीट बना लेनी है वहीं पे, या गूगल फॉर्म बना लेना है, वहीं पे अपलोड का भी ऑप्शन रहता है अपने पास, फाइल्स अपलोड का. तो बस पूरे सर्टिफिकेट्स, इंटर्नशिप के लेटर्स, MOU अगर है तो MOU के लेटर्स पूरे पूरे वहीं पे डाल देने हैं, एंड सिंपली कीप ऑन गैदरिंग दैट डेटा. आपके ड्राइव में एक जगह पे पूरा पूरा डेटा आता जाएगा, राइट. सो बेनिफिट्स ऑफ मेंटरिंग ये मैंने बताया फ्रॉम द अकेडमिक इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ इफ वी टॉक अबाउट अ मेंटर, इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है एज अ मेंटर. यहाँ पे मेरी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है विथ माई मेंटी. I am also getting known for whatever work that I am doing for my mentees. Okay, I may be called to impart education to different other institutions about what new mentoring things that can be done. Right. At the same time, the beautiful relationship that you have developed over the years with that mentee, which is probably going to stay with you for the entire lifetime, that is व्हाट शुड आई से, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती. इट्स प्रेशियस, राइट.
जो रिलेशनशिप आप फॉर्म करते हैं, जो ट्रस्ट, जो कंपैटिबिलिटी बिल्टअप हो जाती है, दैट इज समथिंग दैट यू टेक अवे विथ यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर mentoring process. Okay, with this, let us now move on to the other part of the presentation, which is counseling. So, friends, our job is to teach the students we have, not the ones we would like to have, not the ones we used to have, those we have right now, all of them. पहले अच्छे बच्चे थे, आज के बच्चों में तमीज़ ही नहीं है, आजकल के बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भी विश नहीं करते हैं, पहले का ही ज़माना अच्छा था, हम हमारे टीचर्स के साथ ऐसा सोच भी सकते थे क्या एंड ऑल दैट। येस, वी वेंट आउट आवर फीलिंग्स इन द स्टाफ रूम, दैट इज़ फाइन, बट वो वेंटिंग तक ही रखना है। वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टू understand and take the students that we have with us in this particular moment, right? So जो भी झोली में है वो है, जो टेढ़ा है पर वो मेरा है। So टेढ़ा है पर मेरा है, वो बच्चा कैसा भी हो, that child is mine, that student is mine. It is my responsibility to ensure the best possible way for that particular student. The question that comes to your mind is, shouldn't we leave counseling to counselors? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जी हाँ, जहाँ पे क्लिनिकल काउंसलिंग की बात आती है, जहाँ पे थेरेपेटिक इंटरवेंशन की बात आती है, वहाँ पे हमें काउंसलर्स को ही इन्वॉल्व करना है। पर जहाँ पे करियर काउंसलिंग की बात आती है, ओके, जहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे इश्यूज सॉल्व करने की बात आती है, वहां पे आप लोग आराम से बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। देखिए, आजकल हर टीचर एडमिशन कमेटी में रहता है, स्कॉलरशिप कमेटी में रहता है, और फॉर दैट मैटर किसी ना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव काम में रहता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सर्विसेज में रहते हैं हम लोग। तो हमारा इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स इज फर्स्ट, राइट? वी आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो बच्चा प्रॉब्लम लेके सबसे पहले आपके पास आएगा, and therefore having good counseling skills becomes extremely essential for us teachers. Now let me tell you the difference. जब मैं मेंटरिंग की बात करती हूँ, मेरे पास 20-25 जो मुझे असाइंड है वो मेरे हैं। जब मैं काउंसलिंग की बात करती हूँ, जो भी मेरे पास आएगा एज माय क्लाइंट, जैसे मेंटरिंग में मेंटर मेंटी है, वैसे काउंसलिंग में काउंसलर और क्लाइंट रिलेशनशिप रहता है। तो जो भी बच्चा मेरे पास, मेरे सेंटर तक क्लाइंट बन के आता है या मुझसे काउंसलिंग सर्विसेज ले रहा है, इट इज माय ड्यूटी नॉट टू शेयर anything about him or her to anybody else which is having confidentiality. मैं एग्जाम्पल देती हूँ। तो अब मेंटरिंग में मान लीजिए, अब मेंटरिंग की बात करती हूँ पहले। मेंटरिंग में मान लीजिए कोई बच्चा आपके पास आया है और उसने कहा कि मैम, मुझे ना हिस्ट्री सब्जेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बीए का प्रोग्राम है, आप मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हैं और बच्चे को हिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। यू ऑल्सो कैन नॉट टीच हिस्ट्री बिकॉज आपका भी शायद वो फोर्टे नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप हिस्ट्री टीचर को जाके मिलते हैं और बोलते हैं, भाई सुन, मेरा ना फलाना एक बच्चा है, मेरा मेंटी है, उसको ना थोड़ा हिस्ट्री में डिफिकल्टी जा रही है, तो विल यू जस्ट टॉक टू हिम और देखोगे क्या प्लीज एक बार उसको क्या डिफिकल्टी आ रही है, राइट? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बच्चे की प्रॉब्लम शेयर की हुई है ताकि वो प्रॉब्लम का हल निकल पाए। अब मान लीजिए काउंसलिंग की बात करते हैं, काउंसलर क्लाइंट रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब कोई बच्चा आपके पास आता है विद अ सर्टेन प्रॉब्लम दैट a teacher is troubling them, या फिर हो सकता है दैट ही इज हैविंग प्रॉब्लम्स विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फोबिया डेवलप हो रहा है, उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, एग्जाम्स का टेंशन आ रहा है। ये सब चीजें स्टाफ रूम में चर्चा का विषय नहीं बनने चाहिए। The most important skill a counselor should have is not only of respect and trust, but of maintaining confidentiality. And most importantly, being non judgmental. Somebody might come to you and tell you that they are queer. Somebody might come and tell to you that they are gays or lesbians or they do not identify with the particular gender, right? At that moment, you have to keep all your beliefs, all your preconceived ideas, biases,
whatever stereotypes that you have developed over a period of time aside, you have to be non-judgmental, understand, listen, communicate, and most importantly, when I talk about being non-judgmental, is respect and trust that individual as an individual, right? Not as a student that you see in the classroom. अब यहाँ पे तीन टोपियां बदल ली. From a teacher you donned the hat of a mentor, and now you are donning the hat of a counselor, right? So counseling में ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है. तो क्या करना क्या है, मतलब फिर काउंसलिंग सेंटर ओपन करना है, मतलब क्या करना है? तो जो असेसमेंट है, मतलब फोबियाज, पैनिक अटैक्स, अगर कोई खुद को सेल्फ हार्म करने लगता है, किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसी सब चीजें तुरंत आपको आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, या आपके अगर इंस्टीट्यूशन में काउंसलर कोई है, बच्चे के पेरेंट्स, गार्जियंस, उनको बताना है और तुरंत उसे असेसमेंट के लिए भेजना है. आपका रोल इज ओनली ऑफ एन इंस्ट्रक्टर और अ गाइडेंस कोच, जहां पे आप बच्चे को उसके करियर से रिलेटेड हेल्प कर सकते हैं. तो आप जब नाम देंगे आपके सेंटर का, तो आप सीधा सीधा करियर गाइडेंस सेंटर ऐसा करके नाम दे सकते हैं. तो आप बोलोगे इसको रखना ही शुरू ही क्यों करना है हमको करियर गाइडेंस सेंटर? इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं. द मोमेंट यू स्टार्ट अ करियर गाइडेंस सेंटर, and let me tell you that you have to keep this very very professional. अगर आप चाहें तो 10 रुपए का इस पे ये भी लगाए कि जो भी सेंटर में सर्विस लेने आता है उसको 10 रुपए देना पड़ेगा. शायद फ्री की चीज बच्चे उतना सीरियसली न ले. ओके, बस हमें ये देखना है कि जब हम एज अ काउंसलर उस जगह पे बैठेंगे, तो हमें स्टूडेंट्स के अनरीजनेबल रिक्वेस्ट को नजरअंदाज करना है, राइट? अगर आपको लगता है बच्चा हर बार आपसे बात करने आ रहा है, आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बच्चे को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना है. तो ये सब चीजें आपको याद रहनी है. यू आर नॉट सपोज टू गेट इन्वॉल्व in the problems of the students, but rather stay objective and give them a practical solution. और मैं चाहूंगी कि बिफोर यू स्टार्ट दिस काउंसलिंग सेंटर, प्लीज डू अ कोर्स फ्रॉम इग्नू, यूडेमी, स्वयं, कोर्सेरा, फॉर दैट मैटर अन अकेडमी, जहां से भी चाहें वहां से करियर काउंसलिंग या स्टूडेंट साइकोलॉजी का एक आधा कोर्स कर लें. मैं फिर से कहती हूँ, अगर कोई चाहता है तो किसी कॉलेज में से ही सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप ही खुद शुरू कीजिए एंड स्टार्ट दिस. ओके, एंड लर्निंग नेवर एंड्स माय फ्रेंड्स. तो करियर काउंसलिंग सेंटर कैसा हो? एक अच्छी सी क्लासरूम आप मांग सकते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, जहाँ पे कंफर्टेबल सीटिंग बना लीजिएगा. एक क्वाइट प्लेस जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा, भीड़ भड़क्का ना हो. कंसिस्टेंट टाइमिंग रखिए. टाइमिंग जनरली आफ्टर द क्लासेस रखिए, सो दैट स्टूडेंट्स कैन कम इजीली. दे डू नॉट हैव द बंक द क्लासेस. अप्रोचेबल काउंसलर्स रखिए, पीपल हु हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो भी स्किल्स हमने अभी बात की वो. कुछ टेम्पलेट्स आपको भी रेडी रखने पड़ेंगे, स्वॉट एनालिसिस के, एमबीटीआई टेस्ट के, छोटी छोटी चीजें जैसे कि असर्टिवनेस, और फॉर दैट मैटर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है किसी को, कम्युनिकेशन स्टाइल्स है, ओके, जोहारी विंडो है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है. अगर ये सब चीजें आप गूगल भी कर लेते हैं तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे फ्री टेस्ट्स मिल जाएंगे. इमोशनल क्वोशंट, स्पिरिचुअल क्वोशंट, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक बुक है स्टीफन रॉबिन्स का, उसमें भी आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी. ओके, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट. इसका आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पहले होना चाहिए सब्जेक्ट रिलेटेड, कि उसका असेसमेंट कैसे होना है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, एंड देन यू कैन हेल्प योर स्टूडेंट्स. ओके, ये सब चीजें एक अच्छी सी, मेक इट कलरफुल, मेक इट नाइस. कुछ बाइंडर्स आप रेडी रखिए, बिकॉज करियर काउंसलिंग है तो एग्जाम्स के बारे में, एमपीएससी, यूपीएससी, जो भी हमने इसके पहले डिस्कस किया, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स के बारे में, इंडियन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स के बारे में, कोई नेट सेट देना चाहेगा उसके बारे में. सो वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ, उसको छोटे से स्पाइरल इसमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे रखनी है, राइट? एंड कीप द रिकॉर्ड ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग इन दैट सेंटर. टाइमिंग डिफाइन कीजिए, रूल सेट कीजिए कि हर बच्चा जो आएगा उसको सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे. ओके, एक टाइमर लगा लीजिए. So give record, keep record and give remarks and get signature from your students. Okay.
इतना आपको करना ही करना है, right? And comes the last poll of today's session. How satisfied were you with the mentoring and counseling session? So, quickly mark this. I can go on to showing you how to keep the records. Okay. I can talk to you about one more thing before I end this particular session, and we have uh, a 5 minute water break or something. So, one person has given me extremely satisfied. Thank you so much, ma'am or sir, whosoever it is. um yeah, neutral hai. Okay, thank you so much for that feedback, and I would love to hear about being what kind of improvements you would like to see in the session. Great, thank you so much for that. Anybody else who is marking here? I had five last for the last poll. I had five people marking here. um Anyone else? Okay, okay, I have one more. Okay, I have five people now who have marked me. So thank you so much. And before I end, this is one poem that I have made with the help of AI. So, in the realms of doubt where shadows creep, a guiding hand, a soul to keep. Mentors, wisdom, a gentle art, igniting sparks, a brand new start. Counselor's ear, a listening friend, with empathy's embrace to comprehend. Through troubled waters, a steady guide, unveiling strengths where fears reside. A bond forged deep, a trust so pure, nurturing growth forever sure. With every step, a helping hand, in life's journey, a steadfast stand. For in their care, dreams take flight and potential soar with radiant light. Mentoring's embrace, a sacred space where hearts find healing and souls embrace. So, thank you so much. If you have any questions, I'll be more than happy to take them. Anyone, any questions here? You can ask me. And before I, give you a break for the next session, let me show you the mentoring sheet, rather the information that I talked to you about. Just give me a minute. Yeah, just a minute. Are you able to see the word file? It is in process, madam. Yes. Okay. Now it is Now it is visible. visible. Yes, Yeah. yes. तो मैंने जब कहा कि एक्टिविटीज क्या लोगे, जैसे आपने मेंटरिंग प्लान बना लिया, राइट? तो एक्टिविटी का नाम, तारीख, स्टूडेंट्स के नेम एंड सिग्नेचर्स. अब आप बोलेंगे कि हम लोग तो एक ही महीने में, जैसे हम लोग ने 4 बार ही मिल रहे हैं फिजिकली, बाकी तो आपका सब ऑनलाइन है, मतलब आप व्हाट्सएप ग्रुप पे रखते हैं. तो जो आप फीडबैक फॉर्म कलेक्ट करते हो ना बच्चों से, तो वीकली फीडबैक ले लीजिए और उसको भी आप इसमें दिखा सकते हो, जोड़ सकते हो. दैट कैन बी डन. जैसे मैंने बताया क्या क्या आप टेम्पलेट्स आप रख सकते हो, राइट? सो स्वॉट एनालिसिस, वीकनेसेस, जनरली जो बच्चों के कॉमन वीकनेसेस हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं. इनके ऊपर आप एक्टिविटीज लगा सकते हैं. न्यूली इंडक्टेड टीचर्स के लिए इन चीजों के ऊपर आप एफटीपी चला सकते हैं. 30 आवर कोर्स चला सकते हैं. करियर काउंसलिंग सेल, जैसे मैंने कहा, आप उसको चाहे तो एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग सेल भी बोलिए या करियर काउंसलिंग बोलिए, करियर गाइडेंस बोलिए. ये इंफॉर्मेशन आपको रखनी है. नेम ऑफ द स्टूडेंट, कौन से कोर्स का बच्चा है, कौन से सेमेस्टर का है, देयर एज एंड जेंडर, एरिया ऑफ रेसिडेंस, माँ बाप का ऑक्यूपेशन, कितने मेंबर्स है फैमिली में. बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जब कोई बच्चे में पोटेंशियल है पर हायर एजुकेशन में नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तब हम उसे क्या हेल्प कर सकते हैं वो हमें पता चलेगा. ओके, किस प्रॉब्लम के साथ बच्चा आया था, क्या इशू आइडेंटिफाई हुआ है, राइट? आपने क्या सोल्यूशन दिया हुआ है बच्चे को, और नेक्स्ट मीटिंग बच्चे की कब स्केड्यूल्ड है. ये आपको सब चीजें उनसे लेनी है. ऑलराइट, so any questions so far? Now I can access the chat box. Yes, madam. There are few messages, appreciation messages. Okay, Smita ma'am, thank you so much for your comment. So if there are no questions, ma'am,
Can we have a 5 minutes break then? Yes, madam. Yes, we'll proceed for 5 minutes break. It's 5:25. We'll start at Yeah, 5:30. yeah, great. Okay. All Thank right, you, ma'am. madam, for the first session. All right, ma'am. Great. पार्टिसिपेंट्स हम 5 मिनट में दूसरा सेशन शुरू करते हैं. यू जस्ट टेक 5 मिनट रिफ्रेशमेंट ब्रेक. थैंक यू.